BRS کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے کہا ہے کہ خواتین ریزرویشن ان کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تمام خواتین قانون ساز اداروں میں ریزرویشن چاہتی ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ امبیڈکر نے خواتین کے ریزرویشن کے لیے بھی جدوجہد کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پارلیمنٹ میں خواتین کی تعداد صرف 12% ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پہلی لوک سبھا میں 8% خواتین ارکان پارلیمنٹ تھی تو یہ تعداد اب بڑھ کر 12% تک جا پہنچی ہے۔ BRS قائد ایم حنمت کے خلاف BRS کیڈر نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر ہریش راؤ سے غیر مشروط معافی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ 2 دنوں سے ریاست بھر میں حنمت راؤ کے پتلے کو نظر آتش کیا گیا۔ ریاست کی ترقی کے لیے جدوجہد کرنے والے ہریش راؤ کے خلاف نازیبہ الفاظ کے استعمال پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا۔ میزورم میں زیر تعمیر ریلوے برج گر پڑا، جس کے نتیجے میں 17 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ کئی افراد ہنوز ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ برج اس وقت گر پڑا جب اس پر 30 سے 40 مزدور کام کر رہے تھے۔ وزیر اعظم مودی نے میزورم واقعے پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے مہلوکین کو خراج پیش کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ راحت کام جاری ہے، متاثرین کو ممکنہ مدد فراہم کی جائے گی۔ محبوب نگر کے بعض افراد نے آج صدر PCC ریونت ریڈی کی موجودگی میں کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ محبوب نگر ضلع کے دیور کدرا حلقے سے تعلق رکھنے والے کئی افراد نے آج کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ ریونت ریڈی نے انہیں پارٹی کا کھنڈوا پہناتے ہوئے پارٹی میں ان کا استقبال کیا۔ ریاستی وزیر سرینواس گوڑ نے اپوزیشن جماعتوں کو چیلنج کیا کہ وہ اندرون ایک ہفتہ اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرے۔ انہوں نے کہا کہ BRS نے تلنگانہ کی ترقی کے لیے کئی کام کیے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سوال کیا کہ اپوزیشن جماعتوں نے تلنگانہ کی ترقی کے لیے کیا رول ادا کیا ہے۔ BRS امیدواروں کی فہرست میں مدیراج طبقے کو نمائندگی نہ دینے پر اس طبقے نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ رنگا ریڈی ضلع کے شاد نگر حلقے کے مدیراج طبقے کے قائدین کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں مدیراج طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے کہا کہ BRS امیدواروں کی انتخابی مہم میں رکاوٹ پیدا کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے مدیراج طبقے کی توہین کی ہے۔ انتخابات میں BRS کو شکست دینے کا بھی انہوں نے عزم کیا۔ بودھن اسمبلی حلقے سے BRS کے موجودہ رکن اسمبلی شکیل عامر کو BRS کا ٹکٹ دیے جانے پر بلدی صدر نشین پدما اور ان کے شوہر کی جانب سے پارٹی کی تبدیلی کے یقینی ہونے کی تشہیر جاری ہے۔ MLA اور اس جوڑے کے درمیان کچھ عرصے سے اختلافات سامنے آئے ہیں۔ بودھن میں BRS کے جلسے میں صدر نشین بلدیہ، ان کے شوہر اور ان کے حامی شریک نہیں ہوئے۔ کچھ دنوں سے وہ BRS کے پروگراموں سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ GHMC کے کونسل اجلاس سے پہلے BJP کے کارپوریٹرز نے احتجاج کیا۔ انتخابات سے پہلے کونسل کے اس اجلاس کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ شہر کے مسائل، حکومت کے رویے پر بحث کرنے کا ان کارپوریٹرز نے مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی سینیٹیشن ورکرز کی ہڑتال، بلدیہ کی معاشی صورتحال، حکومت کی جانب سے مدد، ٹاؤن پلاننگ، SNDP
کے کاموں جیسے امور پر بھی بحث پر زور دیا گیا۔ بی سی لیڈر سرینواس گوڑ نے الزام لگایا کہ بی آر ایس نے بی سی طبقے سے دغا بازی کی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی سی میں 136 ذاتیں ہیں، تاہم صرف 5 ذاتوں کو ہی ٹکٹ دیا گیا ہے، بقیہ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کی جانب سے بی سی طبقے سے کی گئی ناانصافی پر 24 اگست کو پھلے اور امبیڈکر کے مجسموں کے قریب دھرنا دیا جائے گا۔ ہمڈا کے عہدیداروں نے موکیلا اراضی کے حراج کا آغاز کیا۔ 2 مقامات پر اس اراضی کے حراج سے 1000 کروڑ روپے کی آمدنی متوقع ہے۔ 5 دنوں تک آن لائن 300 پلاٹس کا حراج کیا جائے گا۔ روزانہ 60 پلاٹس کا حراج کیا جا رہا ہے۔ حراج کا آج سے آغاز ہوا۔ جاریہ ماہ کی 7 تاریخ کو موکیلا مرحلہ اول میں 50 پلاٹس کے ذریعے 120 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ آج سے شروع حراج سے 1000 کروڑ روپے کی آمدنی کی توقع کی جا رہی ہے۔ میدک میں آج وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے دورے سے پہلے کانگریس قائدین نے احتجاج کیا۔ کانگریس قائدین اور کارکنوں نے بائک پر ریلی نکالنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے ان کو روک دیا۔ اس موقع پر پولیس اور کانگریس کارکنوں کے درمیان بحث و تکرار ہو گئی۔ پولیس نے کانگریس قائدین اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ حسینیہ میں پولیس اسٹیشن حدود میں اتفاقی طور پر گولی کے چل جانے کے نتیجے میں ہیڈ کانسٹیبل کی موت ہو گئی۔ نلگنڈا ضلع سے تعلق رکھنے والا 30 سالہ بھوپتی سری کانت حسینیہ پولیس اسٹیشن سے وابستہ تھا۔ سری کانت سو رہا تھا کہ اچانک اتفاقی طور پر گولی چڑھ پڑی، جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ اس کو علاج کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ ہندوستان نے خلائی شعبے میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ چندریان 3 کے وکرم لینڈر نے کامیابی کے ساتھ چاند پر قدم رکھ دیا ہے۔ ہندوستان کا تاریخی خلائی مشن چندریان 3 نے بالآخر چاند پر ترنگا لہرا دیا ہے۔ وکرم لینڈر نے چاند کے قطب جنوبی خطے میں انتہائی آسانی سے اترنے کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کی نظریں ہندوستان پر ٹکی ہوئی تھی اور سبھی اسی تاریخی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ مقررہ وقت سے 2 منٹ پہلے ہی وکرم لینڈر چاند کی سطح پر اتر گیا اور ہندوستان چاند کے جنوبی قطب تک پہنچنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا۔ چاند کی سطح پر چندریان 3 اترنے کا عمل اسرو کی جانب سے براہ راست نشر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر خزانہ ہریش راؤ، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ و MP حیدرآباد بیسٹ اسد الدین اویسی سمیت کئی اہم شخصیات نے بذریعہ ٹویٹر اسرو کے سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 14 جولائی کو سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے چندریان کو لانچ کیا گیا تھا۔ بی آر ایس کی رکن قانون ساز کونسل کی کویتا کا کہنا ہے کہ خواتین ریزرویشن ان کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، وہ ملک کی تمام خواتین کے لیے قانون ساز اداروں میں ریزرویشن چاہتی ہیں۔ دختر وزیر اعلیٰ KCR و نظام آباد MLC کے کویتا نے ایک پروگرام کو مخاطب کرتے ہوئے یاد دہانی کروائی کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھی خواتین کے ریزرویشن کے لیے جدوجہد کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کشن ریڈی سمیت BJP قائدین ان پر بلا وجہ تنقید کر رہے ہیں۔ خواتین ریزرویشن بل سال 2010 سے زیر التوا ہے، اسے راجیہ سبھا میں پیش کر دیا گیا ہے، تاہم سال 2023 میں بھی اسے منظور نہیں کیا جا رہا ہے۔ کویتا نے آئندہ دسمبر میں خواتین تحفظات بل کے لیے دوبارہ تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سونیا گاندھی، پرینکا گاندھی، سمرتی ایرانی سمیت تمام خواتین رہنماؤں کو اس میں مدعو کیا جائے گا۔ دریں اثنا انہوں نے BIS قائدین کو خبردار کیا ہے کہ وہ
पार्टी के खिलाफ काम न करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कविता ने यकीन जाहिर किया है कि बीआरएस एक और मर्तबा तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आएगी। रियासती वजीर बराए अफजाइश मवेशियां तलसानी श्रीनिवास यादव ने बीसी बंधु स्कीम के तहत अहल अफराद में चेक्स की तकसीम की। सनत नगर हल्के के मारटपल्ली में बीसी बंधु चेक्स तकसीम प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और 300 से ज्यादा इस्तफादा कुनिंदगान को चेक सौंपे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने बीसी बंधु प्रोग्राम मुसलसिल जारी रहने और हर अहल फर्द को मरहलावार माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। तलसानी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर का मकसद रियासत के तमाम तबक़ात के लोगों को खुश रखना और उन्हें माली इमदाद पहुँचाना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस्तफादा कुनिंदगान रकम को छोटे कारोबार और तिजारती शोबों में तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने चारमीनार एमएलए मुमताज अहमद खान के हमरा चारमीनार यूनानी अस्पताल का दौरा किया। गवर्नमेंट निजामिया जनरल हॉस्पिटल, जिसे चारमीनार यूनानी अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, की इमारत इंतहाई खस्ता हो गई है। गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश के सबब अस्पताल की छत टपकने और अस्पताल में पानी दाखिल होने का वाक़या पेश आ चुका है। रियासती असम्बली के मानसून इजलास में भी चारमीनार यूनानी अस्पताल की खस्ता हाली का मसला उठाया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लिमान हैदराबाद बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर फ्लोर लीडर वो एमएलए चंद्रानगुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने चारमीनार एमएलए मुमताज अहमद खान के हमरा चारमीनार यूनानी अस्पताल का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर अस्पताल सुपरिटेंडेंट ने डॉक्टरों का फुकदान समेत अस्पताल में दरपेश मसाइल से अराकीन असम्बली को वाकिफ करवाया। इस दौरे के मौके पर पत्थरगट्टी डिवीजन कॉर्पोरेटर सुहेल कादरी, अस्पताल सुपरिटेंडेंट, अमला समेत सरकारी हुकाम भी मौजूद थे। म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन के कारगुजार सदर आदिल शरीफ ने अजीम तर बल्दी हैदराबाद के कमिश्नर रोनाल्ड रॉस से मुलाकात की और जीएचएमसी मुलाजिमीन के मसाइल और मुतालबात से वाकिफ करवाया। INTUC के सदर व म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन के नायब सदर आदिल शरीफ ने जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस से मुलाकात करते हुए यूनियन के मुतालबात पेश किए। यूनियन के मुतालबात में जीएचएमसी के तमाम कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग कारकुनान की खिदमत को बाकायदा बनाना, NPS को खत्म करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना, सरकारी मुलाजमीन की तर्ज पर जीएचएमसी मुलाजमीन को हेल्थ कार्ड और अमकना फराहम करना, तमाम जुमरों को बरवक्त तरक्की देना वो दीगर शामिल हैं। आदिल शरीफ ने जीएचएमसी कमिश्नर से इन मुतालबात को पूरा करने पर जोर दिया है। महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद के जारूब कश अमले ने उनकी मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए जीएचएमसी दफ्तर के सामने धरना दिया। जीएचएमसी महकमे के जारूब कश अमले ने उनकी मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा जारी रखा है और वो सरकारी मुलाजिमीन की तरह मिराद देने की मांग कर रहे हैं। आज जारूब कश अमले ने हिमायत नगर में जीएचएमसी दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर एहतजाज खत्म करवाया और एहतजाजी अमले को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।
वज़ीर आला KCR की जानिब से हल्के कामारेड्डी से इंतखाबात लड़ने के ऐलान के बाद पहली मरतबा कांग्रेस सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी पहुंचे। कांग्रेस कायदीन और उनके हामियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने MLA इंतखाबात की फहरिस्त जारी करने के दौरान ऐलान किया है कि वो 2 असम्बली हलकों यानी गजबेल और कामारेड्डी से इंतखाबात लड़ेंगे। KCR के कामारेड्डी से मुकाबला करने के ऐलान के बाद आज पहली मरतबा मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी जिला पहुंचे, जहां जंगामा, डोमाकुंडम और पलवांचा गांव के लोगों और कांग्रेस के कायदीन व हामियों ने मोहम्मद अली शब्बीर से यकजहती का इजहार किया और उनकी तायद में नारे बुलंद किए। सभी ने मोहम्मद अली शब्बीर की हिमायत करने का यकीन दिलाया है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने BRS सरबराह KCR पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो असम्बली में मुस्लिम नुमाइंदगी खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने MLA उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने और सिर्फ 3 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने पर BRS सदर व वज़ीर आला KCR पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने चॉकलेट पॉलिसी इख्तियार करते हुए मुसलमानों को सब्ज़ बाग दिखाए, बुनियादी हुकूक को पामाल किया। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का कहना है कि सेक्युलर होने का झांसा देकर मुसलमानों के जज्बात से खेलना और कदम कदम पर धोखा देना KCR की फितरत रही है और अब KCR रियासती असम्बली में भी मुस्लिम नुमाइंदगी को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को MLA टिकट दिया जाना उसी साजिश का हिस्सा है। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने रियासत के मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो सूझबूझ से काम लेते हुए KCR की साजिश को नाकाम बनाएं। वज़ीर आला KCR के मेदक दौरे के मौके पर मोटरसाइकिल रैली निकाल कर एहतजाज दर्ज करवाने वाले कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। BRS सरबराह KCR मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के लिए मेदक का दौरा कर रहे हैं। ताहम उनके दौरे से कबल ही कशीदगी उस वक्त फैल गई जब कांग्रेस के जिला सदर तिरुपति रेड्डी की सदारत में कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने गुज़िश्ता इंतखाबात में किए गए वादों को अमली जामा पहनाने का KCR से मुतालबा करते हुए मोटरसाइकिल रैली निकाली। इतला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर रैली को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से कांग्रेस कारकुनान और पुलिस एहलकारों के दरमियान झगड़ा हुआ। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। आपको बता दें कि मेदक में KCR की आमद के मौके पर न सिर्फ कांग्रेस कायदीन ने एहतजाज दर्ज करवाया है, बल्कि मैनमपल्ली रोहित के हामियों ने भी उन्हें MLA टिकट न देने पर एहतजाज किया है। महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील के मुताबिक अक़लियतों के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 21 सितंबर तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि हुकूमत तेलंगाना ने साल 2015 में ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम मुतारिफ करवाई है। इसके तहत अक़लियती तलबा अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, जनूबी कोरिया, जापान, फ्रांस और न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल कर सकते हैं। मुंतखब उम्मीदवारों को PG और PhD की तालीम के लिए 20 लाख रुपये की माली इमदाद दी जाती है। उम्मीदवार वेबसाइट www.telanganaepass.cgd.gov.in पर भी जाकर तफसीलात हासिल कर सकते हैं और दरख्वास्तें भी दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवारों से असनादात की कॉपियां समेत दरख्वास्त फॉर्म का प्रिंट महकमा अक़लियती बहबूद के दफ्तर में जमा करवाने की ख्वाहिश की गई है।
यूनाइटेड ट्रैवल्स के ज़ेर एहतमाम हर माह आज़मीन उम्रा के 4 काफ़िलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। यूनाइटेड ट्रैवल्स एमडी मोहम्मद इस्माइल खान की ज़ेर निगरानी 30 सालों से आज़मीन हज और आज़मीन उम्रा की खिदमत अंजाम देता रहा है। यूनाइटेड ट्रैवल्स की खास बात यह है कि वो दीगर टूर्स एंड ट्रैवल ऑपरेटर के मुकाबले इंतहाई मुनासिब कीमतों पर आज़मीन को तमाम तर सहूलियात मुहैया करवाता है और हर महीने 4 उम्रा ग्रुप की हैदराबाद से रवानगी अमल में आती है। इस ट्रैवल्स के जरिए फरीज़ाए हज और फरीज़ाए उम्रा की अदायगी के लिए रवाना होने वाले आज़मीन को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर रिहाइश की मुफ्त सहूलियात, हैदराबादी खाने और लॉन्ड्री की सहूलियत मुहैया करवाई जाती है। ये भी याद रहे कि यूनाइटेड ट्रैवल्स दीगर ममालिक के इंडोर्समेंट वीज़ा, बिजनेस और सियाहती वीज़ा भी फराहम करता है। शहर हैदराबाद के ग्रीनलैंड्स जंक्शन के करीब एक चलती कार में आग लगने का वाक़या पेश आया। कार में सवार अफराद इस वाक़े में महफूज रहे हैं। ज़राए ने बताया कि मंगल की रात देर गए ग्रीनलैंड्स जंक्शन के करीब ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब गाड़ी बेगमपेट की तरफ जा रही थी। कार में आग लगने की इत्तला पाकर पुलिस ने फौरी चौकसी इख्तियार करते हुए आतिश गिरोह अमले को इत्तला दी और आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में कार में सवार अफराद महफूज बताए गए हैं, ताहम कार मुकम्मल तौर पर शोलाफोश हो गई है। पुराने शहर के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में बंदूक इत्तेफाकी तौर पर चलने से एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। ज़राए ने बताया कि नलगुंडा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साला भूपति श्रीकांत पुराने शहर के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। बताया गया है कि श्रीकांत मंगल की रात ड्यूटी पर तैनात थे और ड्यूटी अंजाम देने के बाद वो सो रहे थे कि अचानक बंदूक से मुश्तबा तौर पर गोली चल गई और वो शदीद जख्मी हो गए। श्रीकांत को फौरी तौर पर उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान भूपति ने आज आखिरी सांस ली। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश का आगाज किया है। तेलंगाना एंटी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और गोलकुंडा पुलिस के अफसरान ने गांजे की खरीदो फरोख्त करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है और लाखों रुपये मालियती गांजा जब्त कर लिया है। एसपी ईस्ट जी चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हदूद में गुज़िश्ता कई सालों से ये अफराद गांजे की खरीदो फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये अफराद एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ पुलिस हदूद में गांजा फरोख्त किया जा रहा था। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए TSNAB के अफसरान ने गोलकुंडा पुलिस के हमरा इन्हें तहवील में ले लिया और उनके कब्जे से 22 किलो गांजा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, 40,30,000 रुपये नकद रकम, KTM मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। जी चक्रवर्ती ने अवाम बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है कि वो मंशियात के आदी ना बने और वालिदैन से भी उन्होंने अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखने और गांजे की खरीदो फरोख्त या फिर इस्तेमाल से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की इत्तला के लिए बेझिझक पुलिस से राब्ता करने की ख्वाहिश की है। मीरपेट पुलिस ने 16 साला लड़की की इज्तिमाई असमत दरी के मामले में 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीर के रोज एक लड़की के मकान में दाखिल होकर चाकू की नोक पर डरा धमकाकर उसकी असमत दरी करने वाले 7 मुलजिमीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि उनका एक साथी मफरूर है। उन्होंने कहा कि मुतासरा की शिकायत पर मीरपेट पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए थे और मुश्तबा अफराद को पकड़ने के लिए 6 खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई थी। CP ने कहा कि CCTV फुटेज की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कर्नाटक से इन अफराद को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ पर उन्होंने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से एक चाकू बरामद कर लिया गया है।
सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा समेत मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश ने शदीद गर्मी से बेहाल मस्जिद हराम में मौजूद ज़ायरीन को राहत पहुँचाई। तफसीलात के मुताबिक मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाएं चली हैं। सऊदी अरब के तमाम खित्तों में शदीद दर्जे हरारत के चलते ये बारिश अवाम के लिए रहमत और राहत का सबब बनी है। तेज़ हवाओं के सबब मस्जिद हराम के सहन में नज़्म रुकावटें और सफाई कारकुनान के गिर जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सऊदी अरब के मौसमियाती मराकज़ ने असीर, जज़ान, अलबहा और मक्का मुकर्रमा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशकशी की है। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।